Learning. In this tutorial we will see bitwise operators. In the last tutorial we have successfully covered arithmetic operators, relational operators. In this tutorial we will see how we can implement bitwise operators in Python programming language. If I talk about computer science, a bitwise operation operates on one or more bit patterns of binary numbers. All the level of their individual bits, it is fast and simple action, directly supported by the processor, and is used to manipulate values for comparison and calculation. On simple low-cost processors, typically bitwise operators are substantially faster than division, of course, faster than division of course, and then several times faster than multiplication, and sometimes significantly faster than addition, while modern processors usually perform addition and multiplication just as fast as bitwise operations. Due to their longer instruction pipelines and other architectural design choices, bitwise operations do commonly use less power because of the reduced use of resources. So have a look. We have many types of bitwise operator. You can see here the first bitwise operator is and we can denote with the help of this AND operator. The other bitwise operator is OR. We can represent OR with the help of this pipeline, single pipeline. Then the third one bitwise operator is XOR, and we can represent the symbol of XOR is look like this. The fourth one is binary ones complement. This is also bitwise operator, and we can represent this binary ones complement with the help of this complement symbol. The second last bitwise operator is this left shift operator, binary left shift operator, and we can represent binary left shift bitwise operator with the help of this symbol, this greater than symbols 2 times. And this is last binary right shift bitwise operator, and we can represent binary right shift bitwise operator with the help of this specific symbol. So let's start how we can implement these operators in Python language. Before implementation, of course, we have to understand first their backend work, how we can analyze AND operation, okay, then OR, XOR and other work. So let's start one by one, understanding of each bitwise operator manually. Then after manual work we will understand implementation of bitwise operators in Python language. As you can see here, operator copies a bit to the result if it exists in both operands. What does it mean? We will solve with the help of an example. Then you can easily understand how binary AND operation of bitwise operator will work. So have a look. Firstly, we have to consider two values. Then on the basis of two values we will analyze AND operation of bitwise operator or operation of bitwise operator. तो यहाँ पे सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं कुछ वैल्यूज़. ए में अलग वैल्यूज़ ले लेते हैं और बी में डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेते हैं. फिर हम कैलकुलेट करते हैं ए एंड बी, दिस इज एंड ऑपरेशन. फिर हम निकालेंगे ए और बी, ये बिटवाइज और ऑपरेटर है. उसके बाद हम चेक करेंगे ए और बी के बाद क्या चेक करेंगे, जॉर देख लेंगे. ये बिटवाइज जॉर ऑपरेटर कह लें इसको आप, या फिर आप कह लें ये बिटवाइज ऑपरेटर है. इट्स लुक लाइक अ जॉर ऑपरेशन. ठीक है, लेट मी सी अगेन बाइनरी जॉर. ठीक है, तो बाइनरी जॉर कह लें, जस्ट जॉर कह लें, इट्स योर चॉइस. देन वी विल सी कॉम्प्लीमेंट, इसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर. या तो आप इस तरीके से लिख लें या फिर आप इसको ऐसे लिख लें, एक ही बात है. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट आप किसी भी वैल्यू का लें, आप ए का लें या आप बी का लें, इट्स योर चॉइस. ओके, देन आफ्टर वी विल सी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, देन राइट शिफ्ट ऑपरेटर. ठीक है, तो एक हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर देख लेंगे, फिर हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर देख लेंगे.
ये हमारा जो है वो लेफ़्ट है और ये हमारा क्या है, राइट है। तो दिस इज़ माई लेफ़्ट शिफ्ट बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर एंड दिस इज़ माई राइट शिफ्ट बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर। एज्यूम कर लेते हैं ए में हमारे पास 60 है और बी में हमारे पास क्या है, 13 है। अगर आपने कैलकुलेट करना है एंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अंडरस्टैंड करना है एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। एंड ऑपरेशन अगर 2 आपके पास वैल्यूज़ हो और कुछ इस तरीके से 1 0, सॉरी ये 0 नहीं है, ट्रूथ टेबल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं, 0 1 0 1। और ये आपने अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। एंड ऑपरेशन आपका इस तरीके से परफॉर्म होता है। अगर और की बात करें, मतलब एंड मीन्स मल्टीप्लाई, दिस इज़ और मीन्स प्लस। और की बात करें तो यहाँ पे बना लेते हैं, ओके तो यहाँ और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और में हम करते हैं प्लस ऑपरेशन, तो डेट्स मीन 0 + 0 0, 1 + 0 0 + 1 1, 1 + 0 1 एंड 1 + 1 1। तो इस तरीके से आपकी बैक एंड पे बिट्स जो होंगी वो आपस में मैनिपुलेट होंगी, उस तरीके से आपको एक अच्छा रेस्पॉन्स आपको आउटपुट प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले 60 और 13 का ए एंड बी निकालने से पहले हम देख लेते हैं 60 की बाइनरी क्या है और 13 की बाइनरी क्या है। तो यहाँ पे 60 की बाइनरी लिखते हैं, डेट्स मीन हम ए की बाइनरी लिख लें। यहाँ हम 13 की बाइनरी लिखते हैं, डेट्स मीन हम बाइनरी लिख रहे हैं बी की। तो अगर 16 की बाइनरी की बात करें तो 16 की बाइनरी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128। सबसे पहले मैंने 8 बिट्स का एक बिट पैटर्न लिख लिया है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, बिट वाइज ऑपरेटर जो हैं वो बिट्स पे काम करते हैं, पैटर्न्स पे काम करते हैं। तो मैंने 8 बिट्स का यहाँ पे एक पैटर्न लिख लिया है। ठीक है, कितने बिट्स का लिखा है, 8 बिट्स का। अब मैंने इन 8 बिट्स में वही बिट ऑन करी है जिससे मुझे 60 बनाना है। ठीक है, तो 64 तो मैं ऑन नहीं कर रही यहाँ पर, तो ये भी मेरा 0, ये भी मेरा 0। हाँ, 32 मैंने ऑन किया, 16 मैंने ऑन किया, तो 32 + 16 मेरे हो गए 48। अब 48 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 60 बन जाए। अगर मैं 48 में 8 ऐड करती हूँ तो क्या बना, 56। ठीक है, अभी भी मुझे 60 करना है तो 56 में मैंने ऐड कर दिया क्या, 4। सो नाउ अब आपकी बिट्स वैल्यू जो ऑन है वो कितने की हो गई, 60 की हो गई। 32 + 16 + 8 + 4 = 16। बाकी सारी बिट्स आपने ऑफ कर दी। तो ये क्या है, आपकी रिप्रेजेंटेशन है 60 की, किस में, बिट्स में। इसी तरीके से बी यानी कि बी में जो वैल्यू है 13, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं बिट्स फॉर्म में। तो 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 8 बिट ऑन करनी है, आपको 14 बिट ऑन करनी है। ठीक है, इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ, 8 बिट ऑन करनी है। 13 आपको 4 बिट ऑन करनी है, तो 8 + 4 8 9 10 11 12 हो गए 12। अब 12 में आप तो 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। हाँ, 1 ऐड करेंगे आप तो 13 हो जाएगा। बाकी सारे आपने क्या कर दिए, 0 कर दिए। लेट मी सी रिकॉर्डिंग हमारी हो भी रही है या नहीं, यस इट्स वर्किंग। तो देखें, आपने बिट्स प्रेजेंट कर दी ए और बी, यानी कि कंप्यूटर को आप वैल्यू देंगे डेसिमल में, जबकि कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, ड्यूरिंग कंपाइलेशन वो अंडरस्टैंड करेगा बैक एंड पे 60 की बाइनरी, बैक एंड पे 13 की बाइनरी, और परफॉर्म करके आपको जो आंसर देगा वो डेसिमल में ही होगा। ठीक है, लेकिन बैक एंड पे आपको कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा, बाइनरी में अंडरस्टैंड करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कैलकुलेट करना है, मैंने कंप्यूटर को बताया ए में है 16 और बी में है 13, 60 और 13, और कैलकुलेट करना है कंप्यूटर ने ए एंड बी बिट वाइज ऑपरेटर, और ये कैलकुलेट करके सी में सेव कर देना है और प्रिंट कर देना है क्या, सी। तो कंप्यूटर क्या आंसर देगा आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैं परफॉर्म कर रही हूँ एंड ऑपरेशन। ठीक है, एंड में मुझे पता है 0 0 पे क्या है 0, और 0 1 पे क्या है 0, 1 0 पे क्या है 0, 1 1 पे क्या है 1। तो 0 1 पे 0 0, 1 1 पे 1, 1 1 पे 1, 1 0 पे 0, दिस इज़ योर 0, 1 0 पे 0, 0 0 पे 0, 0 0 पे 0। तो आपको ये बाइनरी मिली। ठीक है, तो ये बाइनरी कंप्यूटर ने अंडरस्टैंड करी और आपको जो आंसर दिया इसका जो आउटपुट आएगा वो बाइनरी में नहीं आएगा। कंप्यूटर ने 60 की बाइनरी अंडरस्टैंड करी, कंप्यूटर ने 13 की बाइनरी अंडरस्टैंड करी, दोनों को परफॉर्म किया एंड ऑपरेशन बैक एंड पे, और इस बैक एंड का जो डेसिमल आंसर बनता है कंप्यूटर ने आपको वो प्रोवाइड किया। तो डेसिमल आंसर जो बनता है इस
बिट्स का वो क्या बनता है, 12 बनता है। तो कंप्यूटर आपको क्या आंसर देगा, 12। कैसे, हाउ, सो यू कैन कैलकुलेट, जो बिट ऑन है आपने उसको कैलकुलेट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली बिट ऑन है और ये वाली बिट ऑन है, डेट्स मीन 8 + 4 = 12। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। आपने डेसिमल में, फ्रंट एंड पे आपने डेसिमल में वैल्यूज़ देनी है, कंप्यूटर आपको कंपाइल करके जो आउटपुट रिस्पॉन्स देगा वो भी डेसिमल में ही होगा, बट बैक एंड पे कंप्यूटर किस तरीके से परफॉर्म करेगा, बिट्स में परफॉर्म करेगा, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर इस तरीके से काम करते हैं। इस तरीके से अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अब मुझे और निकालना है, ठीक है, तो और निकाल लेते हैं। और तो ये आ गया आपका और, ये आ गया और, ठीक है। और में क्या होता है, प्लस, तो ये देखें और में 0 + 0 पे 0 है, बाकी 0 + 1 पे 1, सब पे 1 है, 1 + 0 पे 1, 1 + 1 पे 1, सब पे 1 है एक्सेप्ट 0 + 0 0 पे। तो यहाँ आप देखिए 0 + 1 1, ओके 1, देन 0 + 0 0, 1 + 1 1, 1 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, ठीक है, देन 0 0। ओके जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो देखें आपके पास क्या आंसर बनता है। अगेन इसको देख लेते हैं कि हमने सही किया है या नहीं। 0 + 1, ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक सही। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या बना है। उसके बाद हम इसको डेसिमल में लिख लेंगे। सपोज़ मैंने यहाँ परफॉर्म कराया है डी में ए और बी, और यहाँ पे मैंने आंसर प्रिंट कराया है क्या, बी, ठीक है। ए में क्या है 60, बी में क्या है 13। ऑफ कोर्स हमने 16 और 13 के बिटवीन ही और ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अब हमें आंसर देखना है डी में क्या आंसर आता है डेसिमल में। तो आप देखिए आपकी कौन कौन सी बिट ऑन है, आपकी 32 बिट ऑन है, 16 बिट ऑन है, 8 बिट ऑन है, 4 बिट ऑन है, 1 बिट ऑन है। दैट्स मीन 32 + 16 + 8 + 4 और +1। कैलकुलेट कर लेते हैं क्या बना, 32 + 16 + 8 + 4 +1, तो 32 + 16 करेंगे तो आ जाएगा आपका 30, 40, 46, 47, 48, 48 में आपने 8 प्लस करे तो आपका आ गया 56, 56 में आपने 4 प्लस किए तो 60, एंड 60 + 1 61। डेट्स मीन आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 61 आया, ठीक है। तो कंप्यूटर ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया, 61 इस वाले का, और इस वाले का 12 दिया, ठीक है। तो आई होप ये आपको एंड और निकालना आ गया है। इस तरीके से हम थर्ड अपना बिटवाइज ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया बिटवाइज ऑपरेटर, वो हमने एंड डिस्कस किया, फिर हमने और डिस्कस किया, दिस इज़ एंड, दिस इज़ और। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। ऑल राइट, तो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉम्प्लीमेंट लेना है किसका, कॉम्प्लीमेंट लेना है ए का, ठीक है, और मुझे प्रिंट करा देना है डी। ज़रूरी नहीं है ए का आप कॉम्प्लीमेंट बी का भी ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ये मीन्स ये होता है कि आपने बिट्स को फ्लिप्स कर देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। 1 का 0, 0 का 1। तो यहाँ पे देखें आप, मैं कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ यहाँ पर, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो ए में स्टार्टिंग में 2 0 हैं तो स्टार्टिंग में 2 1 आ गए। दैन आपके पास 4 1 है यहाँ पे, तो 4 0 आ गए। बाकी आपके 64 बिट और 128 बिट पे 2 0 हैं, डेट्स मीन आपके यहाँ पे 2 1 आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया, आपका कैलकुलेट हो गया कॉम्प्लीमेंट। कंप्यूटर ने आपको ये बैक एंड पे प्रोसेस किया, लेकिन आपको जो रिज़ल्ट दिया वो किस में रिज़ल्ट दिया, डेसिमल में। तो जब आप इसको काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट क्या बन रहा है। आपका रिज़ल्ट जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, कंप्यूटर आपको जो वैल्यू देगा वो इस तरीके से देगा -128, क्योंकि इसका मतलब है निगेटिव वैल्यू है आपकी, ठीक है, निगेटिव बिट है आपकी। अगर 0 होता तो पॉजिटिव होती, निगेटिव है, डेट्स मीन मैंने यहाँ पे -128 लिखा है। देन 64, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 4 8 16 32 64, ये आ गया आपका 128, ठीक है। प्लस कौन सी बिट ऑन है आपकी 2 और प्लस 1, तो -128 + 64, इसको करके देख लेते हैं हम कैलकुलेटर पर। -128 + 64 + 3, तो क्या आंसर आया, माइनस का 61। कूल, तो ये आपका जो आंसर आया माइनस का 61 आया। तो कंप्यूटर ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया, इस
ए के कॉम्प्लीमेंट का उसने आपको आंसर दिया माइनस का 61। आप इसको इम्प्लीमेंट करके चेक भी कर सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज में आपको माइनस 61 ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हमने 3 ऑपरेटर डिस्कस कर लिए हैं, जैसा कि हमने स्लाइड्स में देखा। एंड ऑपरेटर, बिटवाइज, और ऑपरेटर, बाइनरी, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जोर ऑपरेटर, देन लेफ्ट शिफ्ट एंड देन आफ्टर राइट शिफ्ट। एक ब्रेक ले लेते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या कहते हैं, लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर और जोर बिटवाइज ऑपरेटर। इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, नाउ टेक अ लुक ऑन जोर बिटवाइज ऑपरेटर, हाउ इट्स वर्क। ठीक है, और वैल्यूज़ हम वही लेते हैं जो हमने पुरानी एज्यूम करी थी। आई थिंक हमने ए में जो एज्यूम की थी वो वैल्यू 60 थी, दैन हमने बी में जो एज्यूम की थी वैल्यू वो 13 थी। ठीक है, और हम परफॉर्म करने वाले हैं सी इक्वल टू ए जोर बी। देन हम परफॉर्म करने वाले हैं सी इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट। कितने टाइम लेफ्ट शिफ्ट को? 2 टाइम। फिर हम एज्यूम करने वाले हैं राइट शिफ्ट को भी। राइट शिफ्ट कितने टाइम हो? 2 टाइम। अच्छा, ये क्या है? क्वांटिटी है। आपने जितनी दफ़ा बिट्स को लेफ़्ट या राइट शिफ्ट करना है, आपने उतनी क्वांटिटी आप कंप्यूटर को बतानी है। ओके, आपने अगर बिट्स को 3 टाइम लेफ़्ट शिफ्ट करनी तो आपने यहाँ 3 लिखना है। अगर आपने 4 टाइम करनी है तो जितनी टाइम आपने शिफ्ट को इंटरचेंज करना है राइट से या लेफ़्ट से, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप, ज़रूरी नहीं है आप ए को ही आप राइट लेफ़्ट परफॉर्म करें, आप बी पे भी लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, बैक एंड वर्क देखते हैं कंप्यूटर किस तरीके से अंडरस्टैंड करेगा और इसका हमें आंसर क्या देगा। ठीक है, एज़ यू नो कंप्यूटर इसको परफॉर्म करेगा और आपको जो आंसर देगा वो डेसिमल में होगा। यहाँ कह देते हैं C1, C2 एंड देन C3। जब आप इसको प्रिंट करेंगे C1 को तो देखते हैं क्या आंसर आता है। देन जब आप प्रिंट करेंगे C2 को तब देखते हैं क्या आंसर आता है। देन प्रिंट C3 और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जोर ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले देखते हैं जोर ऑपरेशन काम कैसे करता है। इसका भी थ्रू टेबल एनालाइज करते हैं जोर का। ठीक है, तो ये ए बी एंड देन जोर का जो सिंबल होता है वो आपका ऐसे होता है ए, और इस टाइप का कैप टाइप का होता है बी। 0 0 1 1 0 1 0 1। जोर में क्या होता है, सेम बिट्स पे 0 होता है, जबकि ऑल्टरनेट बिट्स पे आपका 1 1 आ रहा होता है। ठीक है, तो हमें पता है हमने 60 की बाइनरी क्या लिखी थी, हमने 60 की बाइनरी लिखी थी, यहाँ दोबारा लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128। तो हमारे पास जो बाइनरी थी वो थी 1 0 0 1, फिर यहाँ पे 1 था 1 था 1 था, यानी कि 32 + 16 + 8 + 4 बन के हमारा क्या बन रहा था, 60 बन रहा था। ठीक है, ये 60 की मैंने लिखी है बाइनरी। उसके बाद हमने बाइनरी कैलकुलेट करी थी 13 की, और 13 की बाइनरी के लिए हमने इसको ऑन किया था, इसको ऑफ़ किया था। ये दोनों बिट्स हमने ऑन की थी, बाकी सारी हमने ऑफ़ कर दी थी। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं क्या, हम कैलकुलेट करते हैं जोर। तो देखिए 0 1 ऑल्टरनेट बिट है, डेट्स मीन मैंने यहाँ 1 लिखा है। 0 0 सेम बिट्स है। ठीक है, तो सेम बिट्स पे क्या है आपको पता है, 0 1 1 सेम बिट है, 0 1 1 सेम बिट है, देन अगेन 0 1 0 इज ऑल्टरनेट बिट्स, दैट्स मीन आपका यहाँ 1 आएगा। 1 0 ऑल्टरनेट बिट 1 0 0 0 0 0 0। तो ट्रूथ टेबल मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया क्या, जोर। अब आप जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और अपना आंसर एनालाइज करेंगे, आउटपुट एनालाइज करेंगे, आपके पास क्या आउटपुट आया इसका, तो देखते हैं क्या आया आपके पास आउटपुट। बिट्स को आप ऐड कर लें, 32 + 16 + 1। ठीक है, जब आप ऐड करेंगे 32 + 16 तो 32 30 40 46 47 48 49, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 49। लेट मी राइट 49। ठीक है, तो दैट्स मीन आपका आंसर आया C1 वाले का क्या आया, 49। अब देखते हैं लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन और राइट शिफ्ट ऑपरेशन। जैसा कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, बाइनरी लेफ़्ट शिफ्ट, बाइनरी राइट शिफ्ट। ठीक है, और एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, आपने जितनी दफ़ा शिफ्ट करना है आप उतनी बिट्स यहाँ पे बता दें। देखते हैं परफॉर्म करके मैनुअली। तो देखें 60 तो यहाँ पे दिया हुआ है मुझे,
यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे ले आ रही हूँ। ए को लेफ्ट शिफ्ट करना है, दिस इज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट। ए को लेफ्ट शिफ्ट करना है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो सबसे पहले हम ए की बाइनरी लिख लेते हैं यहाँ पे अगेन 0011, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ओके 001111 4 टाइम 1 देन 00। लेफ़्ट का मतलब है आपका लेफ़्ट कहाँ है? इस तरफ है आपका लेफ़्ट, ठीक है। आपका राइट कहाँ है? इस तरफ है। तो आपने लेफ़्ट से कितने बिट्स को शिफ्ट करना है? आपने लेफ़्ट से 2 बिट्स को शिफ्ट करना है। तो आपने 2 बिट्स यहाँ से रिमूव करी और आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दी, इसे ये कहलाती है लेफ़्ट शिफ्ट, बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। अगेन इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने बाइनरी लिख दी है यहाँ पे 60 की 00 4 टाइम 1 00। अब मैंने यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो लेफ़्ट शिफ्ट में हम करते हैं क्या है, ये मैं ऊपर बाइनरी आपकी लिख देती हूँ 1 2 4 8 16 32 64 और ये आ गया 128। यहाँ से 2 बिट्स आपने काटी और आपने 2 बिट्स कहाँ ऐड कर दी? यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या बना? 0000 4 टाइम 0 देन 4 टाइम 1। अब आपका 1 यहाँ पे नहीं है, अब आपका 1 कहाँ है? यहाँ आ गया। 2 यहाँ 4 8 16 32 64 128। अब आप जब इनको ऐड करेंगे, किन किन को ऐड करेंगे आप? 128 को ऐड करेंगे आप, उसमें 64 ऐड करेंगे, देन 32 और फिर 16। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आउटपुट होगा आफ्टर शिफ्टिंग 2 बिट्स ऑन लेफ्ट साइड। तो देखते हैं कैलकुलेटर पे इसका आंसर क्या आता है। ओके तो ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन कर लिया है। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, फाइनल आंसर क्या आया आपका? 240। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, आई एम राइटिंग हियर 240, 2 देन 4 और 0। तो ये आपकी परफॉर्म हो गई क्या? बिटवाइज ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो यानी कि आपका C2 में क्या आंसर आएगा? ये C1 का आंसर था बाय द वे। अब आपका C2 में क्या आंसर आया? आपका C2 में आंसर आया क्या? C2 इज इक्वल टू 240। कंप्यूटर आपको 240 आंसर देगा। और कैसे देगा? बैक एंड वर्क हमने एनालाइज कर लिया है। उसने क्या किया? 2 बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करा। इसी तरीके से हम देखते हैं C3 क्या आंसर देता है आपको। अगेन ये हमने परफॉर्म किया यहाँ पे XOR ऑपरेशन, फिर हमने परफॉर्म किया लेफ्ट शिफ्ट, अब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं राइट शिफ्ट, ठीक है। तो राइट शिफ्ट देखते हैं। ओके तो राइट शिफ्ट के लिए अगेन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट शिफ्ट में A, देन आपने शिफ्ट करना कितने टाइम? 2 टाइम्स। तो A बाइनरी आपके पास लिखी हुई है, दोबारा इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 00 4 टाइम 1 देन 00। अब आपने क्या करना है? आपने राइट से 2 बिट्स को शिफ्ट करना है। तो राइट से हटा देते हैं 2 बिट्स को, यहाँ से मैंने 2 बिट्स हटा दी, ठीक है। और मैंने कहाँ भेज दी? मैंने यहाँ पे 2 बिट्स ऐड कर दी। तो देखिए आपकी क्या बन गई वैल्यू? 1 2 4 8 16 32 64 128। अब आप ऐड कर लें 8421। जब आप ऐड करेंगे 8421 को तो आपको क्या बनेगा? 15 बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है। राइट शिफ्ट में आपने राइट से 2 बिट्स हटा के आपने इस तरफ लगानी है लेफ़्ट पे, और लेफ़्ट शिफ्ट में आपने लेफ़्ट से बिट्स हटा के कहाँ लगानी है? राइट पे, ठीक है। और जब आप बिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो आपकी जो बिट्स का पैटर्न है ऑफ कोर्स वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पहले 1 था, अब कहाँ 1 आ गया? यहाँ पर। इस तरीके से पहले यहाँ 1 था, अब 1 कहाँ आ गया मेरा? यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 15। तो मैंने यहाँ लिख दिया 15। ओके तो ये हमने मैनुअली वर्क अंडरस्टैंड कर लिया है किस तरीके से बिट वाइज ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन लैंग्वेज में। आपको वर्किंग आ गई है, बैक एंड समझ में आ गया है, तो जावा लैंग्वेज हो, C# हो, C++ हो, C लैंग्वेज हो, सब में बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, बस सिंटैक्स चेंज होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेम होता है। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर किसमें? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ऐसा करते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं जो हमने बैक एंड पे काम किया है मैनुअली वही वैल्यूज़ हम यहाँ पे लेते हैं, ताकि हम आंसर्स को एनालाइज कर सकें कि कंप्यूटर ने हमें सेम रेस्पॉन्स दिया है या नहीं जैसा हमने मैनुअली काम में अंडरस्टैंड। अगेन मैं इसको टाइप कर लेती हूँ A = 60
then b equal to 13, then c equal to 0, c equal a and b, then c equal to a और b, और यहाँ पे वही वैल्यूज़ लिए जो हमने मैनुअली काम किया था उसमें थी, ठीक है। देन c इक्वल टू a और b, यहाँ आ गया प्रिंट c, कॉपी कर लेते हैं इसको, इतना पहले रन करके चेक कर लेते हैं। ओके आपका देख लें 12, 61, 49 वही आंसर आए हैं जो हमने मैनुअल काम किया था उसमें आए। अब देख लेते हैं लास्ट के 3 ऑपरेटर्स बिटवाइज। सी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट 1 के लेफ्ट पे, ये जहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई 1 2 3 4, कॉम्प्लीमेंट आपका जो ऑपरेटर है 1 के लेफ्ट साइड पर है ए, और ये आ गया प्रिंट सी। देन लेफ्ट शिफ्ट भी निकाल लेते हैं, ए लेफ्ट शिफ्ट टू प्रिंट सी, ठीक है। और राइट शिफ्ट भी निकाल लेते हैं, देन राइट शिफ्ट दिस इज प्रिंट सी। रन करके चेक कर लेते हैं इसको। सो यू कैन सी हेयर -61, 240, 15 सेम आंसर आए हैं जो हमने बैक एंड पे वर्क एनालाइज किया था नोट पैड पर। 15, 240 और ये 49 कंप्यूटर ने भी हमें वही रेस्पॉन्स दिया है। आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा आप लोगों के, और आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स को। थैंक यू।